Assalamu alaikum and good evening, everyone. First of all, thank you very much to all the learners for joining this webinar session. The purpose of today's webinar session is to guide you on the emerging skills on Coursera. There are basically two parts of today's session. The first part will cover the future ready graduates, top emerging skills for career success, to guide you on what type of skills are available on Coursera to make yourself ready for the professional market. And the second part of this today's session would focus on the project management, explore career opportunities and Coursera to kickstart your journey. So for the first part, I would like Coursera team. We have Nupur and Mahesh from Coursera who have tell you about the emerging skills available on Coursera. Over to you, Nupur. Thank you. Great. Thank you so much, Hamza. And good afternoon, everyone. मेरा नाम नुपुर है और मैं Coursera के साथ एक implementation manager हूँ. Thanks, Hamza. I will start sharing my screen and I would love to take everybody through on what the emerging skills are in the market. Industry relevant skills क्या है? How is the market changing? And if we want to focus our career on a few set of skills, तो फिर वो skills कौन सी होनी चाहिए? अगेन हम चाहते हैं कि ये वेबिनार बहुत ही इंटरैक्टिव हो, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज़ Q&A विंडो में ऐड करते रहिए. एज एंड व्हेन आई गेट द अपॉर्चुनिटी मैं इन्हें आंसर करती रहूँगी. थैंक यू सो मच. Perfect. So while we get started, let's take a look at the agenda. तो जो हमजा का agenda है, this is a further breakdown of that. आज हम देखेंगे why is it important to learn and what are the top skills जो हमें focus area में रखनी चाहिए. We will talk and we will cover the AI skills, business skills, data skills and tech skills क्योंकि ये चार predominant industries हैं जहाँ पे maximum career progression हो रही है. और फाइनली हम थोड़ी बहुत बात करेंगे ऑन द रीजनल स्किल्स मीनिंग एशिया पैसिफिक में कौन सी रीजनल स्किल्स है विच आर सीइंग मोर ट्रैक्शन, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है और जहाँ पे लर्निंग कर्व्स भी ज़्यादा है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई लर्न व्हाई नाउ. So to get us started, right, मेरे पास एक बहुत ही interesting graph और chart है आपको दिखाने के लिए on how technology adoption is changing, right? So as humans हम हर चीज़ को adopt करने के लिए एक certain number of time लेते हैं. अगर हम देखें कि टेलीफोन की बात करें, back in the days, it took 90 years for a human to adopt the use of a telephone. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को ऑलमोस्ट 70 ईयर्स लगे हमें अडॉप्ट करने के लिए इन आ डे टू डे लाइफ्स. कमिंग टू कार्स, गाड़ियों को अडॉप्ट करने के लिए हमें 60 ईयर्स लगे. लेकिन जब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट आया, व्हेन एवरीथिंग वाज मोर टेक ड्रिवन, जैसे कि द इंट्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फोन्स को हर घर में पहुंचने के लिए, टेक्निकली अडॉप्ट करने के लिए ह्यूमंस टुक नियरली 16 ईयर्स. World Wide Web, which is our internet, took 7 years. Now, before I show you the last one, does anybody want to take a guess on how many years it took for humans to adopt artificial intelligence? अगर मैं ChatGPT, Google Gemini की बात करूँ, in general artificial intelligence, engineering, prompt engineering की बात करूँ, तो क्या कोई guess करना चाहेगा कि for you and me, normal people, कि हमें कितना टाइम लगा है उसे अडॉप्ट करने के लिए. एंड ये जो भी आपके गेसेस है, प्लीज पुट इट इन द चैट एंड इन जस्ट अनदर 2 seconds, we'll take 2-3 seconds more, I'll show you how much time it has taken. So World Wide Web, again, 7 years. Next is artificial intelligence or ChatGPT, which actually took less than 2 months. जहां हम सालों का रेडियस देख रहे थे, 90 years, 60 years, 10 years, 7 years, ChatGPT को अडॉप्ट करने के लिए the world took less than 2 months, right? This is unbelievable if you really think about the transition of adoption of different technologies that we're seeing. This is incredible, and this also actually shows कि ChatGPT, artificial intelligence, data literacy, tech skills का importance आज के दौर में क्यों इतना ज़्यादा है. Why is it important for us to move with technology? So here are two quick numbers, right? Global insights, जो कि हम कहते हैं, that Gen AI is the fastest growing skill of 2025, and year on year, the Coursera platform has seen
an increase in enrollments. जो भी Gen AI के courses है Coursera platform पे, उन courses में we have seen an 866% increase in enrollments amongst the learners. आप जैसे ही learners Coursera पे 866% times और ज़्यादा Gen AI के courses में अब enroll कर रहे हैं. If I compare it to maybe 2 years down the line, 2 years back in the time. अब fastest growing skills है. We'll take a quick look. जैसे कि आप देख सकते हैं, द फर्स्ट स्किल हैज टू बी एंड राइटली इज जेन एआई, जनरेटिव एआई, which is used to generate text, images, videos, and up to, if any one of you is using Gemini, if anybody is using ChatGPT, Perplexity, आप बकायदा जो भी आपका डेटा एनालिसिस का काम है, इवन यूजिंग एक्सेल शीट्स, राइट, अगर आपको वी लुकअप लगाना है, आपको शीट सैनिटाइज करनी है, you want to understand how to use Power BI, आपको codes लिखवाने हैं, all of that can be done using Gen AI because this is a prompt engineering based skill. आपको simply English में prompts डालने हैं and that will get converted into your final output. Next is human resources technology, risk management, assertiveness. अगर मैं इन्हें और bucketize करूँ, this is for all of you to read. अगर मैं इसे further bucketize करूँ, आप देखेंगे कि ये सारे skills are around AI, which is artificial intelligence, data literacy and transformation, communication, and also career readiness. अब हम next चीज देखेंगे, which is the fast growing skill of AI, right? Fastest growing AI skills overall may, if I were to break it down, right? And for all those students, faculty members also, जो आज हमारे साथ इस webinar में हैं, you can take a screenshot of this because I understand that बहुत बार हम बहुत interested होते हैं, we are very curious ये समझने में, ये सीखने में कि हमें कौन सी skill adapt करनी चाहिए, either to start our career या फिर career progression करने में या फिर career switch करने में. So I will give you a snapshot of some of these skills, right? तो फिर आप अपने end पे इनका screenshot ले सकते हैं, आप अपने mobile phones में भी इन्हें capture कर सकते हैं. So these are the skills अगर कोई AI and not, and I will say that everybody should actually be taking up at least one course in Gen AI, at least one course machine learning समझने के लिए कि exactly ये algorithms होते क्या है, जिसके basis पे Gen AI is working, जिसके basis पे artificial intelligence is working, जिसके basis पे हमें outputs मिल रहे हैं. I will recommend कि सबको at least एक course deep learning समझने में भी लेना चाहिए. These are the 3 skills which I would like to highlight from the ones currently displayed. Because ये skills समझ के you will understand the basic framework of artificial intelligence, how it is important, why is it important, and in your day-to-day life, how can you really go ahead and use it. Next up, the fastest growing AI skills by learner. अब जैसे कि वी आर ऑल अवेयर कि हमारे वेबिनार में सिर्फ लर्नर्स के दौर पे स्टूडेंट्स या फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स नहीं हैं, हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, हमारे पास वो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉब्ली डिप्लोमा कर रहे हैं, जो साइड बाय साइड आर ऑल्सो सीकिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. सो उन सब के लिए मैंने एक क्विक ब्रेक डाउन करा है कि अगर आपको अपने लर्नर पर्सोना के हिसाब से कोई स्किल अडॉप्ट करनी है तो फिर आपको वो कौन सी स्किल अडॉप्ट करनी चाहिए. जैसे कि स्टूडेंट्स हो गए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा और इन डेप्थ चीज़ें समझने के लिए यू विल सी दैट देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेन एआई, कंप्यूटर विजन, फीचर इंजीनियरिंग, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. ये particularly important है because as a student this will help you become a job seeker. एंड फॉर एम्प्लॉयर्स जो भी हमारे फैकल्टी मेंबर्स वगैरह भी हैं, आपके लिए जो स्किल्स अवेलेबल है दीज आर मोर ऑन द हाई लेवल विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग एंड व्हाट द जॉब सीकर्स आर सीकिंग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग जो है हमारी बिजनेस स्किल्स. बिजनेस स्किल्स जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग एरिया है, जिसमें अगर मैं स्किल्स को फर्दर ब्रेक डाउन करूं आपके लिए, यू विल सी दैट ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी इज द टॉप स्किल. हमारी टॉप ट्रेंडिंग स्किल इन बिजनेस इज ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी. So human resource technology exactly है क्या? So this is a skill which will basically help you manage people and resources better using technology. और ये क्यों important है? क्योंकि for the longest time
ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करना एक मैनुअल टास्क हुआ करता था जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन वाज ऑलमोस्ट नथिंग, बिल्कुल कोई इंटरवेंशन नहीं था. सो इट यूज टू बिकम अ वेरी लेबोरियस टास्क. However, now with the changing times, managing human resource with the use of technology has become very important. रिस्क मिटिगेशन एंड कंट्रोल ये एक फाइनेंस की स्किल है. स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन इज समथिंग आई थिंक हमजा विल ऑल्सो टॉक अबाउट दिस इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट slides which he will cover. Workplace technologies अगर अब and this is mainly for all the students. अभी अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो फिर the kind of technologies you use बहुत ही limited है आपका टेक्नोलॉजी का यूज़. However, when you start working, when you are preparing yourself to take on a career, इन दैट केस वर्कप्लेस टेक्नोलॉजीज या फिर वर्कप्लेस टूल्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वर्कप्लेस टूल्स क्या होते हैं? आपका पावर बीआई हो गया, एक्सेल हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे काम करते हैं जैसे कि स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपको वर्कफ्लो मैनेजमेंट करना है, आपको टेक में जाना है, आपको प्रोसेस मैनेजमेंट करना है, तो फिर जीरा कैसे काम करता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जैसे कि असाना हो गया, स्मार्ट शीट्स हो गया, इन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ दिस कंप्राइजेस ऑफ वर्क प्लेस टेक्नोलॉजीज. दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू बी फॉलोड बाय पावर पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक्सेट्रा. अगेन बिकॉज हमारे पास हर पर्सोना के लर्नर्स हैं अभी इस वेबिनार में, दिस इज अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ कौन सी स्किल कौन से लर्नर पर्सोना से अलाइंड है. प्लीज फील फ्री टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. बट मेजरली आप देखेंगे कि रिस्क मिटिगेशन कंट्रोल, ह्यूमन रिसोर्स टेक्नोलॉजी, when it comes to job seekers, right? Compliance management, active listening, these are skills which are very, very important. Now let's move on to the next thing, which is the fastest growing skill in data science. Why is data science important, right? अब हमें ये चीज समझना बहुत ही important है कि data science सिर्फ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है या फिर टेक्नोलॉजी वाले लर्नर्स के लिए नहीं है. Data science in today's date is important for everybody. आप एचआर में हो, फाइनेंस में हो, डिजिटल मार्केटिंग में हो, कोडिंग में हो, टीचिंग में हो, आपके लिए डेटा साइंस के बेसिक समझना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन डेटा साइंस. हर चीज डेटा और डेटा साइंस के रिलेटेड है. अगर आपको डेटा साइंस आता है, यू विल बी एबल टू डू डेटा विजुअलाइजेशन, जैसे कि यू विल बी एबल टू डू रियली वेल यूजिंग पावर बीआई, यूजिंग टैबलो. यू विल बी एबल टू डू डेटा माइनिंग, जिसमें कि आप डेटा एक्सट्रैक्ट करके इनसाइट्स और इन्फरेंसेस क्रिएट करता है. यू विल बी एबल टू डू डेटा एनालिटिक्स ऑल्सो, जिसकी जॉब्स बहुत ही पॉपुलर हैं इन द मार्केट. For this data science, in my opinion, अगर for all the students, I would suggest कि अगर आपने अभी तक करा नहीं है तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप एक डेटा साइंस का कोर्स तो जरूर एक डेटा साइंस के कोर्स में जरूर एनरोल करना, उसे कंप्लीट करना. और फिर आप देखेंगे कि उसके बाद के आप जितने भी कोर्सेज करोगे, you will see that you have a slightly more technical understanding of how data works, how technology works, how cloud works, how AI works. Again, a snapshot सबके लिए, जो employees है, students है and job seekers है, on why डेटा साइंस इज इम्पॉर्टेंट और कौन सी स्किल डेटा साइंस की आपके साथ बेस्ट अलाइंड है. जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग में भी है, as you can see, marketing analytics, business analytics is like the top two when it comes to job seekers. For students, data analysis software जैसे कि अभी मैंने कहा कि Tableau हो गया, Power BI हो गया, data mining हो गया, ये सब कुछ बहुत important है. And lastly, for employees, understanding data ethics, information management, understanding game theory and data strategy is extremely important. So again, take a screenshot of this and feel free कि आप जब भी नेक्स्ट कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पे कोर्सेरा प्लेटफॉर्म को एक्सेस करेंगे, आप इन्हीं कीवर्ड्स में से कोई एक कीवर्ड या फिर कोई एक स्किल पिक करके अपने सर्च बार में सर्च करके यू कैन एनरोल इनटू अ कोर्स ऑफ योर चॉइस. ठीक है, moving on to the next thing is the fast growing tech skills, right? um Again, data science, artificial intelligence, and everything that we even business skills, in सब का एक so there is an umbrella skill, right? We call it a big skill, and then we call AI, data science and everything as the smaller skills. The reason tech skills
को हम अम्ब्रेला स्किल बोलते हैं, इज बिकॉज इसी के अंडर आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिनका ओवरलैप डेटा साइंस के साथ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ है और बिजनेस के साथ है. To give you a quick overview, I would love to highlight two very, very important things जो कि टेक स्किल्स, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू द इनसाइट्स जो कोर्सेरा के पास है और जो एनालिसिस कोर्सेरा ने करा है, we see two things which really stand out, right? The very first one is computer security. जैसे डेटा साइंस बढ़ रहा है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, देर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, आर पर्सनल इंफॉर्मेशन विच इज आउट देयर फॉर एवरी वन टू यूज, राइट? अब उस इंफॉर्मेशन को आप प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, आप अपने आप को साइबर थ्रेट्स से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हाउ डू यू प्रिवेंट फ्रॉड्स from happening, how do you prevent viruses from getting into your system? This is going to be the new thing which comes up as protection against the malpractice of AI, malpractice of data science. So anything around computer security, security information and event management, threat management and modeling is, you will see, the top skills when it comes to tech. इनको अगर मैं समराइज करूँ तो इनकी समरी है डेटा सिक्योरिटी या फिर साइबर सिक्योरिटी. सो जहाँ की हमारे पास बहुत सारे लर्नर्स हैं who will be very interested in artificial intelligence, data science, business skills. I would also want to highlight कि इन्हीं का जो काउंटर पार्ट है, बिकॉज जहाँ की हर चीज़ के हमारे पास बहुत सारे प्रोज एंड एडवांटेजेस हैं, देर इज ऑल्सो अ सिक्योरिटी थ्रेट that all the students and employers are at when we put our data out in the market. उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए the new emerging field which is going to counter or maybe protect us from the malpractices of artificial intelligence or data science, वो field है on cyber security और data security. And again, इनके इनकी जितनी भी jobs है, especially for cyber security, आप notice करेंगे कि cyber security, networking, most of these jobs are actually remote jobs. So it's not necessary कि आपको एक particular country में रहने की ज़रूरत है in order to apply for those jobs or in order to get those jobs. So if there is anybody, हमारे पास अगर कोई students है, anybody who is already, let's say, in a certain stage in their career, और आप अपनी career opportunities को expand करना चाहते हैं without leaving your country or without leaving your city, then tech skills is the place where you want to be. Tech skills like cyber security, data security, network management is one of those skills जहाँ पे आपके पास बहुत सारी remote opportunities भी है. So feel free to take a screenshot in the next slide. Here is a further breakdown of all the skills that you can pick. आप इन्हें पिक करके आप अपने कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पे इन्हें सर्च कर सकते हैं. यू विल सी मल्टीपल कोर्सेज. जो भी कोर्स आपके टाइम बैंडविथ के साथ बेस्ट अलाइन करता है, प्लीज़ आप उसी कोर्स में एनरोल करिएगा. और ये इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज द लास्ट थिंग वी वांट इज़ कि सारे स्टूडेंट्स एक कोर्स में एनरोल करें एंड देन फॉर टाइम कंस्ट्रेन रीजन आप उसको कंप्लीट ना कर पाए. So it is very, very important to also complete a course to get the certificate so that you are more eligible or viable for jobs in the market. Great. Lastly, when it comes to our region, right? We are a part of the Asia Pacific region. हमारी रीजन में हमने जितनी भी 50 स्किल्स देखी है, उनमें से योर आर द टॉप 20 स्किल्स which you need, because these are the skills जिसके लिए एशिया पैसिफिक में बहुत ज़्यादा डिमांड है. अगेन AI में आई थिंक वी हैव ऑलरेडी स्पोकन, जेन AI, ML हो गया, कंप्यूटर विजन हो गया. बिजनेस में अगेन HR टेक्नोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट विच इज़ अराउंड द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, एंड स्टेक होल्डर कम्युनिकेशंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेटा साइंस में आपका हो गया डेटा एथिक्स, डेटा स्ट्रैटेजी, डेटा गवर्नेंस, और टेक स्किल्स में हो गई आपकी साइबर सिक्योरिटी स्किल्स. Lastly, moving on to the final thing, which is on role-based careers. So here, I'll just make up, give me 2-3 minutes. I'm just going to switch my VPN so that I can show you कि especially for Pakistan as a region, as a country, कौन सी skills है जो कि going to quickly open it. Bear with me.
ओके, हियर आई हैव इट। मैं अपना स्क्रीन रीशेयर कर रही हूँ। परफेक्ट। इफ एवरीवन's एबल टू सी इट, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ ताकि सबके पास, अगेन फील फ्री टू रिकॉर्ड दिस ऑन योर फोन्स ऑल्सो। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं। सो ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। कोर्सेरा के पास, सो वी हैव दिस टैब कॉल्ड द करियर्स टैब। ठीक है, अब इस करियर टैब में जितना भी हम अभी डेटा देख रहे हैं या फिर जितने भी इन्फ्लुएंसेस हम देख रहे हैं, दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द पाकिस्तान रीजन। And the reason I can tell you that this is specific to the Pakistan region या फिर the country is because I have changed my VPN settings ताकि मुझे सिर्फ वही roles दिखें जो आपकी country में predominantly जिनकी jobs है या फिर जिनके careers हैं। सो इन पाकिस्तान करंटली अगर मैं ऑल कैटेगरीज में देखूं, सो हियर आर अ फ्यू करियर रोड मैप्स अवेलेबल टू यू। जैसे कि हमने देखा, द फर्स्ट इज ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट, फिर आपके पास है ML इंजीनियर, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, डेटा एनालिस्ट। और अगर आप रिलेट कर पाए तो ये वही सारी स्किल्स है जिनका अभी हमने स्नैपशॉट देखा था। UI UX experience designer, business intelligence analyst, graphic designer, business analyst, etc. अब इसमें let's suppose if somebody is only interested in business, right? अगर आप business में ही करियर बनाना चाहते हैं एंड आपके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना प्रोफिशिएंसी लेवल सिलेक्ट करें यहाँ से। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप बिगनर ही रखें। इफ़ समबडी इज़ ऑलरेडी इन देयर करियर, मे बी आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप बिल्कुल इंटरमीडिएट यूज़ कर सकते हैं। एंड इफ देर इज समबडी जिनके पास 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो फिर आप एडवांस रोल्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एंड आई एक्चुअली पिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्योंकि मुझे पता है कि हमजा इज गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेशन। सो अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, इफ आई सी माई सेल्फ मेकिंग अ करियर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, राइट? सो कोर्सेरा मुझे ये बता रहा है दैट नुपुर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपके पास दीज आर द टॉप कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स कोर्सेरा प्लेटफॉर्म पे। अगर आप ये कोर्स या फिर आप ये सर्टिफिकेट कंप्लीट करते हैं, then there is a very good chance that you can position yourself as a project manager in the Pakistan region today. So इसमें मेरी बेस्ट recommendations है the Google Project Management Certificate. I have the Microsoft Project Management Certificate. And please also, something I want to highlight is Coursera platform पे कुछ certificates जो है आप देखेंगे कि it takes almost 6 months for you to complete it, because these are a collection of multiple courses. So again, if somebody wants to take up a certificate, आप ये project management certificate पूरा complete करना चाहते हैं, तो ये सारे courses आपको complete करने पड़ेंगे within, not really within, but ideally within a span of 6 months. ये सर्टिफिकेट एक और आपको एडवांटेज देता है, और वो एडवांटेज है ये, दैट इफ एट एनी पॉइंट आप में से कोई अगर ऑनलाइन डिग्री परस्यू करना चाहता है इन द फ्यूचर, तो दिस सर्टिफिकेट विल ऑल्सो गेट यू क्रेडिट्स टूवर्ड्स दैट डिग्री। सो अगर वो डिग्री आपकी लेट्स सपोज 2 साल की है, थ्रू दीज क्रेडिट्स में भी आपको 2-3 महीने कम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन दिस डिग्री, बिकॉज दिस पर्टिकुलर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट विल गेट यू दोज ड्यू क्रेडिट्स। सिमिलरली हमारे पास, अगर मैं शो मोर कर दूँ, तो फिर हमारे पास IBM का भी प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। ऑल्टरनेटिवली, इफ आई फर्दर स्क्रोल डाउन, राइट, करियर रिसोर्सेज में अगर मुझे करियर एडवाइस चाहिए, राइट, वी हैव सम फैंटास्टिक आर्टिकल्स, और आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट आर्टिकल्स है, इट विल नॉट टेक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, लेकिन ये इंडस्ट्री रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिनके थ्रू आपको एक्चुअली और इंसाइट मिलेगा कि आपको PMP सर्टिफिकेशन कैसे मिलेगी। बिकॉज PMP सर्टिफिकेशन अगर मोस्टली आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोर्सेज, नॉट कोर्सेज सॉरी, बट आप करियर्स देखें, जॉब ओपनिंग्स देखें, अ लॉट ऑफ देम विल हैव दिस रिक्वायरमेंट कि आपके पास PRINCE2 या फिर PMP का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यू कैन गो थ्रू दिस। अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, इफ यू आर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू फॉर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो फिर व्हाट आर द टॉप 12 क्वेश्चंस विच यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर। सो ऑल ऑफ दीज आर अगेन रीडिंग मटीरियल विच इज अवेलेबल टू यू। फिर सिमिलर रोल्स भी है आपको एक्सप्लोर करने के लिए। सो दिस इज जस्ट अ क्विक ग्लिम्स जो कि मुझे सबको दिखाना था कि आपके पास ये है मल्टीपल करियर अपॉर्चुनिटीज जो जो which according to our system is selling like hotcakes, if I may say so, in Pakistan at the moment. और अगर आप एक क्विक कॉमनैलिटी देखेंगे इन सारे करियर जॉब्स या फिर करियर पाथवेज में, वो ये है कि मोस्टली ये सारे थोड़े से टेक ड्रिवन हैं
और ये सारी वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है जिनमें वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क का ऑप्शन होता है. दिस इज कंसिडरिंग द फैक्ट दैट बहुत बार इट्स पॉसिबल दैट मे बी हम हमारी सिटीज़ छोड़ के नहीं जा सकते, हम हमारी कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट हैव अ करियर in these areas which I am showing you, because inki hiring a lot of times is remote. So again, feel free to make a note of it. If you want, I can also share these with Hamza. He can share it with you also. He can put it on the portal for all the learners to see. But this is everything जो मुझे cover करना था आज, to give all our attendees a flavor of what are the emerging skills in the industry. आपके region के लिए emerging skills क्या है, एक particular domain की emerging skills क्या है, and particularly if somebody wants to explore a career, then currently in Pakistan, these are the top careers that you should be aiming for if you want to be job ready. With that, Hamza, over to you. Thank you so much for the time, and thank you so much for letting me, share this information with our learners today. Thank you very much, Nupur, for this amazing presentation. And indeed, काफी लोग confused थे कि कहाँ से start करना है, how to find the emerging skills, किस तरह career को start करना है. तो I believe आपकी जो presentation थी वो काफी learners को help out हुआ होगा. And you should follow the same steps to find out the careers based on the project management or the skills that Nupur has discussed with you. तो आप emerging skills में enroll होके अपना career बिल्कुल start कर सकते हैं. और मैं कमेंट सेक्शन हम देख रहे थे, काफी लोग रिकॉर्डिंग के हवाले से बात कर रहे थे. तो या डेफिनेटली यू विल हैव द रिकॉर्डिंग एट द एंड ऑफ टुडे, जिसमें आप नूपुर ने जो भी आपको इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए हैं, फीडबैक्स, रिस्पॉन्सेज जो भी आपको समझाया है, वो आप दोबारा उसको गो थ्रू कर सकेंगे. कमिंग टू द स्टार्टिंग विद द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. Yeah, okay. So let me tell you about myself. My name is Hamza. I'm a project manager of this DLHCI project, जिसमें आप enroll हो चुके हैं. तो मैं project को lead कर रहा हूँ in Pakistan since 2020. So based on my personal experience with this DLHCI project, I'm going to tell you about the project management field, how this project management and how a project manager career can help you in stepping into the professional market through Coursera courses. किस type के courses जो कि already नूपुर ने mention किए हैं, लेकिन थोड़ा सा thoroughly जाके मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि what type of courses are available on Coursera and how you can start your career with the project management field. So about the project management, काफी comment section में ये भी लोगों की क्यूरी थी कि I'm a chemical engineer, I'm a software engineer, can I start career in the project management? So if I tell you about myself, I'm a bachelor's in civil engineering. I did bachelor's in civil engineering back in 2019. I'm a civil engineer. लेकिन जब मैंने engineering को pursue किया field को, then I realized कि I'm not made for engineering. So that's why I switched my field from engineering to management. I did MBA back in 2021, and I started doing job as a project manager since 2020 with this DLSCI project. तो अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर आप बिल्कुल बन सकते हैं. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की खासियत ही यही है कि इट्स नॉट अ फिक्स्ड फील्ड, इट्स नॉट अ फिक्स्ड स्किल, बल्कि हर एक इंडस्ट्री, अगर वो फार्मेसी से हो, अगर मेडिकल, अगर इंजीनियरिंग से हो, डेटा साइंस रिलेटेड हो, आईटी रिलेटेड हो, ईच एंड एवरी इंडस्ट्री, ईच एंड एवरी डोमेन को प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत लाजमी होती है. तो अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड को आप ऑप्ट करते हैं, तो यू कैन फिट इन द सॉफ्टवेयर हाउसेज, यू कैन फिट इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन द फार्मेसी, मेडिकल फील्ड. तो एनी डोमेन, एनी इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैनेजर की जरूरत लाजमी होती है. तो व्हाट इज बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टर्निंग आइडियाज इनटू रियलिटी. आपके माइंड में जो आइडियाज हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज आप करते हैं टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. It's all about planning, initiating planning, organizing, supervising, controlling, research, guiding a team to complete a project successfully. A skill, ये project manager एक ऐसा skill है जो कि not only आपके professional work में आपकी help करता है, बल्कि आपके studies में help करता है, आपके personal life में help करता है. If I talk about studies, तो obviously आप में जितने भी students होंगे या faculty होंगे, आपने किसी time पे एक project को lead किया होगा या participate किया होगा. स्टडी अपने बैचलर्स लेवल में, मास्टर लेवल में, पीएचडी लेवल में, some kind of a research, a project, an assignment, a quiz. तो a team work to achieve a specific goal is called as a project management. तो अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, आप
टीम में पार्टिसिपेट आपने किया है, आपने प्लानिंग उसके लिए की, वर्किंग आपने की और आपने गोल को अचीव किया, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, तो दिस इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. Even in your personal life, if you want to, let's say, go to north, have a trip in the northern areas of Pakistan, तो आप किस तरह जाते हो, आप अपने बजट को देखते हो, अपने प्लानिंग करते हो, आप टाइमिंग डिसाइड करते हो, कैलेंडर डिसाइड करते हो, रिसोर्सेज देखते हो. तो ईच एंड एवरी एक्टिविटी टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. और इसी तरह से प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल वर्क में, let's say building a house, building a plaza, building a high-rise building is a part of project management. So what does project manager actually do? प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उनकी वर्क डोमेन में क्या आता है? वो आता है प्लानिंग रिसोर्सेज. आई गिव एन एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ हाई राइज बिल्डिंग और अ हाउस. तो जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो आप अपने रिसोर्सेज देखते हो कि मेरी रिसोर्सेज क्या है, इनिशिएट करते हो. देन आप असेंबल एंड लीड प्रोजेक्ट टीम. आप अपनी टीम बनाते हो कि ये मेरी टीम लेबर टीम है, ये मेरी वेंडर टीम है जो कि सप्लाई चेन वर्क करेगी. इस तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टीम होते हैं, फाइनेंशियल बजट रिलेटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के होते हैं. आप असेंबल करते हो और आप अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हो. ऑब्वियसली आप अपने टाइम मैनेजमेंट को देखते हो कि कितने टाइम में मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. अगेन बजट क्या है मेरा, कितना खर्चा मेरा होने वाला है. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू डूइंग अ वर्क फॉर अ क्लाइंट, तो आप अपने क्लाइंट को बताते हो कि व्हाट इज माय बजट, व्हाट दिस प्रोजेक्ट विल कॉस्ट. तो बजट ऑब्वियसली मैटर करता है. क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट विच प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट डू. तो प्रोजेक्ट मैनेजर इन शॉर्ट सिर्फ इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक कि आप कोई भी गोल अचीव करने के लिए थोड़ी बहुत वर्किंग करो, बल्कि बीइंग अ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर यू शुड लुक आफ्टर डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट डोमेन्स पे आपको नजर रखनी पड़ती है, जिसपे तमाम चीजें आती हैं, रिसोर्सेज, बजट, टाइम. क्वालिटी एश्योरेंस इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजर और अचीविंग अ गोल. मैनेजिंग इश्यूज और रिस्क. ऑब्वियसली अगर इफ यू आर कंस्ट्रक्टिंग हाई राइज बिल्डिंग, फ्लड्स आ सकते हैं, डिजास्टर हो सकता है, क्या रिस्क आ सकता है, बजट में कमी आ सकती है, स्कोप में इजाफा हो सकता है. तो प्रोजेक्ट मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. एंड अगेन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस. किस तरह आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर करते हो, आपकी टीम किस तरह वर्किंग कर रही है, बजट क्या है आपका, ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, आपकी टीम परफॉर्म अच्छे से कर रही है, क्वालिटी आपकी ठीक है, टाइम आप कंप्लाई कर रहे हो, जो टाइम पीरियड आपने रखा है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस पे उसकी प्रोग्रेस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट part. And at the end of this reporting and documentation, Nupur mentioned a word stakeholder. What is basically stakeholder? Stakeholder उनको कहते हैं जिनका स्टेक होता है किसी प्रोजेक्ट में, जो कि अफेक्ट हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट में. तो स्टेक होल्डर के लिए आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो. सो इन शॉर्ट देयर आर several activities being a project manager you have to do and you have to conduct. Project life cycle. Here I'm going to give example of this DLSCI project. कि DLSCI प्रोजेक्ट जो हमारा कोर्सेरा के साथ कोर्सेरा के कोर्सेज आप करते हो, तो ये किस तरह हमने इम्प्लीमेंट किया है. ये आपके लिए तो आसान है कि आपने मतलब सिंपल क्रिस्टल क्लियर है कि आपने अप्लाई किया, आपकी वेरिफिकेशन हुई, आपको लाइसेंस मिला. लेकिन बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर जब आप इसको देखते हो कि किस तरह आपने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया, तो ये it's a lot of activities, a lot of tasks involved in implementing this and executing this DLSCI project. Define project goals. सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट गोल्स डिफाइन किए कि क्या हमारे प्रोजेक्ट की गोल्स होने चाहिए. वी आर 1000 सबसे पहले क्राइटेरिया हमने देखा कि हमने स्टूडेंट्स को देना है, हमने अलुमनाई को देना है. अगर अलुमनाई को देंगे उसके ड्रॉबैक्स क्या होंगे, फायदे क्या होंगे, स्टूडेंट्स के क्या होंगे, फैकल्टी मेंबर्स के क्या होंगे, उनकी वेरिफिकेशन किस तरह होगी. तो इनिशिएट करने से पहले हमने कंप्लीट प्लानिंग की थी कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज, टास्क परफॉर्म करने हैं ताकि हम सक्सेसफुली स्मूथली इस प्रोजेक्ट को लेके चलें और एग्जीक्यूट कर सकें. ऑब्वियसली बजट हमने देखा, अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, अगर हम पेड मॉडल पे दे रहे हैं जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो प्रोग्रेस आउटकम जिस पे हमारा अच्छा होगा, तो उस पे हमने इनिशिएट किया. डॉक्यूमेंटेशन ऑब्वियसली हमने की, हमने एचईसी को, कोर्सेरा को, यूनिवर्सिटीज को ऑन बोर्ड लिया. दे आर बेसिकली द स्टेक होल्डर्स, तो किस तरह उनको इन्फॉर्म करना है. ऑब्वियसली द फोकल पर्संस ऑफ योर यूनिवर्सिटी वर सपोज टू वेरीफाई योर एप्लीकेशंस, तो उनको डॉक्यूमेंटेशन करनी थी, उनको गाइडेंस देनी थी. टीम अपॉइंट करना था कि आपके फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया टीम है, आपकी क्यूरीज आती हैं, लर्नर्स की आती हैं, उनको गाइडेंस देना, उनको असिस्ट करना. अप्रूवल्स, हायर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेना. तो इनिशिएट करने के लिए प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में इनिशिएट द प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट साइकिल, जो कि आपने कंप्लीट करना होता है. जब आप कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करते हो, किक स्टार्ट करते हो, तो आपको इनिशिएट करने के लिए कुछ अप्रूवल्स चाहिए होती हैं.
प्लानिंग चाहिए होती है, डिस्कशंस चाहिए होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, बजट चाहिए होता है, प्रोजेक्ट गोल्स केपीआईज आपको डिफाइन करने होते हैं कि व्हाट आई एम एक्चुअली अचीविंग थ्रू दिस प्रोजेक्ट. The second cycle is make a plan. For example, if we are supposed to inform our students, so how we are going to communicate, how we going to send message to all the students and faculty of Pakistan. मार्केटिंग प्लान क्या करना है, मार्केटिंग में हमने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है, क्या वर्क है हमारा, क्या चार्ट्स हमारे हैं जिसपे हमने, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे हमने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, किस तरह हमने डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन करनी है. क्रिएट अ प्लान, प्लानिंग करनी होती है, हाउ टू मीट गोल्स, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, अगेन अप्रूवल्स होती हैं एंड गोल्स को डिफाइन करना होता है. द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप और साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल इज एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूट करने प्लान. जब आपके पास प्रोजेक्ट प्लान बन जाता है, प्रपोजल बन जाता है आपके पास, आप रेडी हो जाते हो एग्जीक्यूशन की तरफ, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कि हाँ हमने लेट्स से 20 जून को हमने इनवाइट्स भेजने हैं या हमने एप्लीकेशन पोर्टल इस डे को ओपन करना है, तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूशन. वी एग्जीक्यूटेड द प्लान. सुपरविजन उसमें आता है, मैनेजिंग स्टेक होल्डर, जिस तरह नुपू ने अगेन बात की थी है कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल involved in the project management life cycle. प्रोग्रेस मॉनिटरिंग हो गया एंड एट द एंड ऑफ द साइकिल क्लोजिंग द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट को आपने क्लोज करना है, आपने रिपोर्टिंग देनी है कि कितने लर्नर्स को हमने अपस्किल किया, कितने कंप्लीशन हुए, एनरोलमेंट हुए. तो इन शॉर्ट ये जो साइकिल मैंने अभी डिफाइन किया है, आप हर एक इंडस्ट्री में, अगर आप एजुकेशनल इंडस्ट्री में हो, आईटी में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी डोमेन में हो, यही लाइफ साइकिल आप फॉलो करके आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो. Again, there are different methodologies of project management. Depends on the industry, depends on the goals, depends on the work, professional work जो आप कर रहे हो, तो उसमें different kind of methodology आती हैं. Project management is a vast field, a big field. It's not a short field जिसमें आप let's say project manager हो तो आप हर एक angle को touch कर सकते हो, हर एक methodology आप use कर सकते हो, बल्कि there are several methodologies based on the project manager, based on the industry, आपकी domain, आपकी work, आप कोई भी methodology use कर सकते हो. The important and the traditional methodology is waterfall. Waterfall methodology, let's give an example of construction. आप जब house build करते हो, सबसे पहले foundation करते हो. Without foundation आप walls नहीं construct कर सकते. तो waterfall management एक simple framework होता है. जब आप एक task complete करते हो, दूसरे task पे जाते हो, इसको कहते हैं waterfall methodology. मैं कंप्लीट थॉरो डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, जस्ट क्रिस्प आपको दूंगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर और मैनेजमेंट और क्या मेथोडोलॉजीज हैं. तो वाटरफॉल ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है कि एक टास्क कंप्लीट करके सेकंड टास्क पे जाते हो. एजाइल आइटरेटिव अप्रोच करते हो. मोस्टली सॉफ्टवेयर कंपनीज में एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जरूरत होती है, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज होता है. और उसी में फिर कैनबान और स्क्रम आ जाता है. स्क्रम में स्प्रिंट आ जाते हैं. कैनबान में आप बोर्ड्स विजुअलाइजेशन करते हो अपने मेथोडोलॉजी की, अपने वर्क की, टास्क की, कि इन प्रोग्रेस क्या है, कंप्लीटेड क्या है, अप्रूवल्स के लिए क्या है, तो उसकी जो आप विजुअलाइजेशन करते हो वो कैनबान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है. लीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो आपके हिंड्रेंसेस होते हैं अपने प्रोजेक्ट में, क्या वेस्ट होता है जिसको आपने रिमूव करना होता है, वो लीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है. एंड सिक्स सिग्मा इज बेसिकली हाइब्रिड अप्रोच, और लीन सिक्स सिग्मा भी इसको कहते हैं, जिसमें आप इम्प्रूवमेंट की तरफ भी जाते हो और अपने जो आपने वेस्ट होता है, जो आपके डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, वो आप रिमूव करते हो. सो बेसिकली दीज आर द मेथोडोलॉजीज दैट यू कैन यूज, डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री यू आर वर्किंग ऑन और द प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन. What are the skills required for being a successful project management? तो number one is the leadership skills. You must have the leadership skills. अगर आप let's say अगर आप कोई भी ट्रिप प्लान करते हो अपने कजन्स में, अपने रिलेटिव में, तो अगर आप लीड करते हो, कोई भी ऐसे हमारा फ्रेंड होता है जो कि लीड करता है उस ट्रिप को, उस प्लान को, तो वो उसको कहते हैं लीडरशिप स्किल्स. उस बंदे में, इंसान में होते हैं, मेल फीमेल में होता है लीडरशिप स्किल्स. तो लीडरशिप स्किल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर. इनेबलिंग डिसीजन मेकिंग. अगर कोई रिस्क आ गया, कोई भी इशू आ गया, तो आपने डिसीजन कैसे करनी है, पॉलिसी कैसे डिफाइन करते हैं, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स आप में लाजमी होनी चाहिए बीइंग अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर. कम्युनिकेटिंग एंड स्केलेटिंग. इसके लिए कम्युनिकेशन आपने लाजमी करनी है. फॉर एग्जांपल अगर डीएलएसई प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हमारी और हमारे लर्नर के दरमियान, जो हम आज वेबिनार कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम आपको एंगेज रख रहे हैं ताकि आप मोटिवेट हो. अब हम आपको इमर्जिंग स्किल्स के बारे में बताएं, आप डिफरेंट स्किल्स के बारे में बताएं और आपको मोटिवेट रखें ताकि यू कंप्लीट मैक्सिमम स्किल्स एंड कंप्लीट मैक्सिमम सर्टिफिकेशंस, गेट सर्टिफिकेशंस
फ्रॉम कोर्सेरा। एस्केलेशन, आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको एस्केलेट करना होता है, इन्फॉर्म करना होता है अबाउट योर steps, about your decisions, about the policies, about the progress. In short, every aspect पे जाके आपको communication और escalation लाजमी करनी होती है. तो these are also two type of skills that are very important to become a successful project manager. Strong organization skills में time management, stress management, different several kind of skills आ गए हैं जो कि आप Coursera पोर्टल में जाके आप free of cost learn कर सकते हैं. Flexibility towards everything, flexibility आप में लाजमी होनी चाहिए. Project management tools and softwares. So there are some project management tools and softwares. Being a project manager, अगर आप project management field में आते हो तो आपको कुछ softwares obviously use करना होती हैं. इसी वजह से project management field जो है तो वो कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि अगर artificial intelligence आ गया है तो project management field भी enhance हो गई because of AI. There are some several softwares that you can use, AI software tools that you can use to perform your project management activities. Asana, Stake by Workzone, Teamwork, Trello, different हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कोर्सेरा पे गाइडेड प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है. सॉफ्टवेयर्स को आप यूज कर सकते हो. डिफरेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि आपसे डिमांड करते हैं कि आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आप सॉफ्टवेयर्स आपको यूज करना आता हो. तो थ्रू कोर्सेरा कोर्सेज यू कैन, थ्रू कोर्सेरा गाइडेड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली टू बी प्रिसाइज, आप सॉफ्टवेयर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स को भी लर्न कर सकते हो. Why choose a project management career path? The important slide, one of the important slide of today's session, the second part of the session, कि several students होते हैं, learners होते हैं जिनको confusion होती है कि हम project management की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते. Again, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, अगर आप कोई भी बैचलर डिग्री या मास्टर्स डिग्री परस्यू कर सकते हो, तो still you can opt project management. फॉर एग्जाम्पल अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, अगेन बीइंग अ सिविल इंजीनियर, मैं एडटेक पे आया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल फील्ड में आया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे आया, वो भी एजुकेशनल फील्ड पे. मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी जा सकता हूँ, बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर विद एन एमबीए डिग्री, आप कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जा सकते हो. अगर आप सॉफ्टवेयर आईटी में हो, अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है, अगर आपने लेट्स से सीएस किया हुआ, कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ, स्टिल you can go for agile project management, you can go for let's say scrum master training, scrum project management फील्ड में आप जा सकते हो, आईटी फील्ड में जा सकते हो आप. इसके अलावा आप इंजीनियरिंग फील्ड में, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस में जा सकते हो, इवन एग्रीकल्चर. सो एवरी डोमेन, किसी भी डोमेन पे आप बिलोंग करते हो तो आप इजीली किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में आप स्टेप रख सकते हो और आप लर्न कर सकते हो हाउ यू कैन बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर. अनदर इम्पॉर्टेंट स्लाइड, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको डायरेक्टली जंप नहीं करना होता कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप ग्रेजुएट हुए बैचलर से, मास्टर से, तो आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ. नो, प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ स्टेप से गुजरना पड़ता है, रोल से गुजरना पड़ता है. मैं भी जब मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का फील्ड स्टार्ट किया था, आई वाज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इनिशियली, देन मेरी प्रमोशन हुई टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर. तो अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजर फील्ड में जाना है तो आपको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की फील्ड से स्टार्ट करना होता है. जब आपका टाइम गुजरता है तो फिर आप असिस्टेंट पीएम बनते हो, तो देन प्रोजेक्ट मैनेजर, देन सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, देन डायरेक्टर एंड देन वीपी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स. ये रोल्स डिपेंड करते हैं इंडस्ट्री पे, वो क्या रोल्स असाइन करते हैं, लेकिन कुछ स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए. आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करना होता है, डायरेक्टली प्रोजेक्ट मैनेजर आपको नहीं असाइन होता टास्क. आप स्मॉल लेवल पे जाके आप अचीव कर सकते हो, हायर लेवल को, टॉप पे आप किसी भी कंपनी में जा सकते हो. अनकवर जॉब अपॉर्चुनिटीज. अब लेट्स से आपके पास स्किल्स आ गए हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के, यू हैव लीडरशिप, यू हैव ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, यू हैव अ डिग्री, यू हैव सर्टिफिकेशन फ्रॉम कोर्सेरा, तो आप जॉब्स अनकवर कैसे करोगे? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, द टॉप यू कैन से एम्प्लॉयर पोर्टल जो है वो लिंक्डइन है. मैनी लर्नर्स, आप में से भी जितने लर्नर्स होंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है या नहीं है. तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका है तो आप उनको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेटेड रखो. अगर आपका नहीं है तो आपको लिंक्डइन पे लाजमी स्टेप इन करना चाहिए. I wasn't a regular user of LinkedIn back in 2020 or 2021, लेकिन one of my senior guide me, और उन्होंने मुझे एक सजेशन दी कि LinkedIn को आप एज ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करो. अगर आप फेसबुक पे स्क्रॉल करते हो, अगर आप इंस्टाग्राम, टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हो, तो आप लिंक्डइन पे भी अपनी आदत बनाओ कि आपने एज ए प्रोफेशनल आपने लिंक्डइन को कैसे यूज करना है. तो आपकी आदत बन जाती है लिंक्डइन पे जाके आप स्क्रॉल करने की, आपको डिफरेंट एम्प्लॉयर से बात करने की, जॉब अपॉर्चुनिटीज देखने की.
तो अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो, अब अपने आप को रेगुलर यूजर बनाओ। अगर आप लिंक्डइन पे नहीं हो तो लिंक्डइन पे लाजमी हो, क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा पोर्टल है जिसपे आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जिस तरह नुपुर ने कैरियर्स बताए हैं कोर्सेरा में, तो वही आप कैरियर जाके लिंक्डइन पे भी सर्च कर सकते हो। अनकवर कैसे करोगे लिंक्डइन पे जाके? यू कैन सिंपली सर्च फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर रोल्स। वहां पे आपको असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट पीएम, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रोल्स आ सकते हैं। सजेस्ट मैं आपको ये करूंगा, जब आप कोई भी रोल वैकेंसी को ओपन करो, आप गो थ्रू करो उस वैकेंसी को कि उस वैकेंसी में डिमांड क्या है। मैक्सिमम एम्प्लॉयर जो होते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, तो वो आपको वैकेंसी में ऐड में आपको क्लियरली डिफाइन करते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल वी नीड अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हु शुड हैव एक्स years of experience or should be a fresh graduate, should have these skills बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपसे स्किल्स डिमांड करते हैं कि लेट्स से स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए आप में, रिस्क मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होने चाहिए। सेकंड में आता है कि आपके पास सॉफ्टवेयर स्किल्स होने चाहिए, आपको ट्रेलो यूज करना आता हो, आसाना यूज करना आता हो, एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूज करना आता हो, गूगल के आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जितने भी पोर्टल्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं वो आपको यूज करना आता हो। नंबर थर्ड फोर्थ पे एजुकेशनल डिग्री भी आ जाती है। इस तरह आप एक्सप्लोर करो, अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो, लिस्ट डाउन करो कि क्या क्या रोल्स हैं प्रोजेक्ट मैनेजर रिलेटेड, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। उन्हीं स्किल्स को जाके आप कोर्सेरा में जाके वही लर्न करो, वही स्किल्स को आप अचीव करो। लिंक्डइन पे जाके वन क्लिक से आप उनको शोकेस करो। एम्प्लॉयर्स को पता लगता है, वो आपके प्रोफाइल पे आप जब अप्लाई करते हो आपकी प्रोफाइल वो देखते हैं कि आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं। तो इस तरह आप अपने आप को हाईलाइट रख सकते हो, अपने स्किल्स को, अपने डिग्रीज को, अपने सर्टिफिकेशन को शोकेस कर सकते हो किसी भी पोर्टल पे। Not only LinkedIn, but there are several job portals, which are indeed one of the best portal for being for applying for a job. Rosie.pk, Glassdoor हो गया, इस तरह डिफरेंट पोर्टल हैं जिसपे आप जाके सर्च करते हो जॉब अपॉर्चुनिटीज। दीज आर सम जॉब अपॉर्चुनिटीज, मैंने कुछ स्नैपशॉट्स लिए हैं जिसमें फर्स्ट वन था, ये लिंक्डइन से मैंने कंप्लीटली उठाए हैं, जूनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो एडवांस नॉलेज, इंटरमीडिएट इंग्लिश आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके आने अच्छे होने चाहिए, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए, बैचलर्स इन मार्केटिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड्स। अगर आपने बैचलर्स लेट्स से सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, किसी में भी की है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप डिग्री कर सकते हो, हायर लेवल डिग्री आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर सकते हो, एमबीए में कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हो। एंड स्किल्स, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, प्रोजेक्ट टूल्स क्या डिमांड है, 1 year experience in project management tools such as ClickUp, Jira, Asana, Trello। तो इस तरह डिफरेंट वैकेंसीज होती हैं, स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, हायर लेवल की भी और जूनियर लेवल की भी। तो आप सर्च कर सकते हो, आप अपनी लिस्टिंग कर सकते हो क्या स्किल्स आजकल की इमर्जिंग है। जिस तरह नुबू ने मेंशन की, वो सिंपली आप जाके कोर्सेरा पोर्टल पे जाके सर्च कर सकते हो। क्रिएट योर प्रोफेशनल इन्वेंट्री आप बना सकते हो, क्या क्या स्किल्स आपके पास हैं, टेक्निकल स्किल्स आपके पास क्या है, नॉन टेक्निकल स्किल्स क्या है, पर्सनल आपकी क्वालिटीज क्या है, एजुकेशनल आपके पास बैकग्राउंड क्या है। These are some top project management courses. I have completed a Google Project Management offered by Google Professional Certificate, जिस तरह नुपुर ने अभी फर्स्ट सेशन पार्ट ऑफ सेशन में आपको बताया कि Google Project Management होता है, जो कि 6 months का होता है। And just to tell you, I completed the same Google Project Management course within a 1.5 or 2 months. 6 months का कोर्स मैंने 2 months में किया, तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि आपने 6 months में ही करना है। आप अगर ज्यादा टाइम दो, अपने कैलेंडर को ऐसे आप मैनेज करो कि आपने मैक्सिमम टाइम देना है कोर्सेरा को, तो आप अर्ली भी आप कंप्लीशन कर सकते हो किसी भी कोर्स की। इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, स्टेक होल्डर एंड लीडरशिप कोर्स है। engineering project management, construction project management course is available, which is offered by Columbia University. Basically a course, project management and other tools for career development, and get started with Asana, one of the software tool available on Coursera. There are hundreds of tools, courses, guided projects available on Coursera. तो आप जाके वो स्किल्स भी आप लर्न कर सकते हो, टीच कर सकते हो।